Dear students, welcome back. From today onward, we are just going to start the new unit of the class 12, that is genetics. In genetics, we'll discuss the complete fundamental portion, including the higher portion like molecular biology, evolution, everything. So in this unit of class 12 and the NEET, three chapters are there. First chapter is the physical basis or genetic basis of inheritance. Second chapter is molecular basis of inheritance, where we'll learn the DNA, RNA, the protein synthesis, everything. And on third unit or on third chapter, we'll learn the evolution and the use of genetics in the field of origin of new species. So here we are just going to start with the first chapter, that is physical basis of heredity or genetic basis of heredity. Here completely we will deal with the pattern of inheritance, how the genes are going to help out in the process of inheritance. So here I'm not going to start with the higher concept, I'm just going to start with the fundamental concept. I'm thinking that I'm just dealing the genetics for the first time to my students, so I'm just going to start with the basic concept, most fundamental concept. So if you will be there with me for next few lectures, so you will have a complete idea of the genetics, each and every term of genetics. I will discuss each and every term. So moving on to the detail of the lecture. So my dear child, genetics word is originated from a Greek word, that is gene. That means the to grow into means to develop into, to form into. So this is what the genetics is. My dear student, एक सभी के दिमाग में, हर ह्यूमन के दिमाग में, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉमन क्यूरियोसिटी, व्हाई वी आर सिमिलर टू अवर पेरेंट्स वन. कैसे पेरेंट अपने जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को, अपने जैसे सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है. दिस इज व्हाट अ कॉमन काइंड ऑफ क्वेरी प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर ह्यूमंस आर द अदर एनिमल्स आर द प्लांट्स. हम प्लांट्स को देखते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ द सीड्स वी आर गोइंग टू सो डाउन, दैट सीड इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ द सेम टाइप ऑफ द पेरेंट. हमने अगर आम का पेड़ लगाना है तो आम का बीज लगाएंगे और उसी से उसी तरीके के पेड़ का फॉर्मेशन होगा, उसी तरीके का पेड़ बनेगा. कैरेक्टरिस्टिक विल बी सिमिलर. हम दशहरी आम लगाने जा रहे हैं तो दशहरी आम ही निकलेगा. इफ़ यू आर गोइंग टू ग्रो द टैमरिंड प्लांट, टैमरिंड सीड लगाएंगे तो उससे टैमरिंड का ही प्लांट निकलेगा, ना कि मैंगो प्लांट निकलेगा. सो दिस इज व्हाट द क्यूरियोसिटी अमंग द ह्यूमंस हमेशा से जानने की कोशिश करता रहा कि वाई द कैटल्स आर गोइंग टू ले डाउन द यंग वंस दैट आर कैटल्स ओनली. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. और इस क्वेश्चन ने ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी को इस लेवल तक बढ़ा दिया कि दे आर विलिंग टू गो फॉर द finding out the meaning, finding out the way how these similarity is being observed. और यदि ये similarity ऑब्जर्व हुई है तो कम से कम ये तो पता चल चुका था ह्यूमन क्यूरियोसिटी से कि ऑल दिस कैरेक्टर्स आर शिफ्टिंग टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर ही इंडिविजुअल में आ रहे थे. दिस इज व्हाट दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट वन. अब प्रॉब्लम ये थी, क्यूरियोसिटी ये थी कि हाउ दिस कैरेक्टर्स आर मूविंग फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर इंडिविजुअल. पेरेंट से संतानों में कैसे कैरेक्टर्स आ रहे थे, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए द ब्रांच दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ वास्ट appearance, vast expression nowadays, that is genetics. So we are going to start with the genetics. So first of all, I'm just going to discuss some fundamental points. So genetics word is originated from the Greek word that gene means to grow into. The term genetics was first time used by the W. Bateson in 1906. The basic points are there, but these basic points are very important for competitive examination because these are the questions that are being as it is asked in the examination. बैटसन ने क्या कहा था जेनेटिक्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू द बैटसन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. विल लर्न मोर in the next half of the chapter. So moving on to the continuous points, then I will discuss each and everything. So what is the genetics in term of, in the words of Batson, is study of the heredity and variation is called genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल, आप सब जानते हैं नाम के बारे में, इस नाम के बारे में. ही इज़ द पर्सन हु हैज़ इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया है. द जॉन मेंडल इज, ग्रेगर जॉन मेंडल इज रेफर्ड एज टर्म्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. टी.एच. मॉर्गन, आगे बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे. टी.एच. मॉर्गन वाज द पर्सन हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्स द जेनेटिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दैट इज व्हाई ही वाज रेफर्ड एज
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने ड्रासोफिला के ऊपर अच्छे खासा काम किया था, जिसके थ्रू इन्होंने डिफरेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ही हैज़ प्रूव्ड देयर ऑन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। जेनेटिक्स टर्म्स किसने दिया था? बैटसन ने। और बैटसन के हिसाब से जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन टू एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जॉन मेंडल फर्स्ट टाइम ही हैज स्टार्टेड यूजिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, उसको समझाने की कोशिश की, सो फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई दिस ही इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। टी.एच. मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट, जैसे बैटसन ने नाम दिया जेनेटिक्स इज द फील्ड वेयर वी डील्स विद द हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। सो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्रोवर्ब टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब इज एज द पेरेंट्स सो आर द ऑफस्प्रिंग। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। एज द पेरेंट्स सो आर द ऑफस्प्रिंग, लाइक बिगेट लाइक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक पुरानी प्रोवर्ब है, एज द पेरेंट्स सो आर द ऑफस्प्रिंग, लाइक बिगेट्स लाइक, मीन्स the daughter individuals, the sons or the daughters or the offsprings are exactly similar to their parents one। जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी तरीके के उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो मतलब कहने का ये है पेरेंट्स के समान ही संतानें होना, लाइक बिगेट्स लाइक, पेरेंट्स के समान संतानों का होना, एज द पेरेंट्स सो द ऑफस्प्रिंग्स आर, जैसे पेरेंट्स हैं उसी तरीके से ऑफस्प्रिंग होते हैं। और इसी कहावत, इसी क्यूरियोसिटी को समझने का नाम है जेनेटिक्स। हाउ दिस similarity is being maintained among the parents and the daughter individual and the offspring is the field of genetics. So let us understand, हम समझते हैं, हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, हमने रिप्रोडक्शन यूनिट को भी कंप्लीट किया है। और रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट था, द पेरेंट्स इंडिविजुअल्स आर रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड द यंग वंस आर सिमिलर टू द पेरेंट्स वन। ये भी एक नई क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों, व्हेन वी आर रिप्रोड्यूसिंग वी आर एबल टू गिव राइज द न्यू वंस, दोज हु आर सिमिलर टू अस। नई क्यूरियोसिटी। Then the daughter individuals bears the characters of the parent, that was also the observation। हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि दिस इज द इंडिविजुअल विच इज सिमिलर टू द मदर, दिस इज द इंडिविजुअल, दिस इज द सन सिमिलर टू द फादर, दिस कैरेक्टर ऑफ द सन इज सिमिलर टू द मदर, दिस कैरेक्टर ऑफ द सन इज सिमिलर टू द फादर। ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर के जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि दिस इज सीम्स टू द सिमिलर टू द ग्रैंड मदर। ये सारे कॉन्सेप्ट लगातार परेशान कर रहे थे। तो उसमें एक चीज़ तो निकल के सामने आई कि दीज कैरेक्टर्स में बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज the reproduction is the process by which the new organism is being originated। रिप्रोडक्शन से नए कैरेक्टर्स का या रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना अभी भी एक पहेली बना हुआ था। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द प्रोसेस ऑफ heredity and variation। So transfer of character is a continuity between parents and offspring। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स। जैसे पेरेंट है वैसे ही ऑफस्प्रिंग होता है। बबूल का पेड़ बबूल के जैसा ही होगा, ठीक है। बबूल का सीड लगाएंगे तो बबूल का पेड़ बनेगा, आम का सीड लगाएंगे तो आम का पेड़ बनेगा। इफ एनी काउ इज देयर, सो काउ हैज टू गिव बर्थ टू द सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल, बफेलो हैज टू गिव बर्थ टू द सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल, बफेलो विल नेवर गिव बर्थ टू द काउज और काउ विल नेवर गिव बर्थ टू द बफेलोज। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। तो एक कंटिन्यूटी रहती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, एंड ड्यू टू व्हाट इज द कंटिन्यूटी और व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट कंटिन्यूटी इज ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, और यही कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन है। मतलब द फ्लो ऑफ कैरेक्टर इज नॉट स्टॉप्ड from the parents to the generation। एक generation में character आएगा, that will be shifted into the next generation। now that generation will take charge to transfer the character into the next generation। so this is what we are transferring the character, we are only the agency to transfer the character from the parent one to the next generation। so this is what the basis of continuity between the generation। so reproduction और transfer का character होना एक continuity को show करता है। फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं, द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर लेट द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इन चीज़ों के साथ फैमिलियर होते गए, आवर साइंस, आवर नॉलेज, आवर अवेयरनेस इज इंक्रीज, इनहैंस, due to the enhanced awareness, due to the enhanced
knowledge of the science, we are getting much and much curious toward this to understand the riddle behind that, puzzle behind that, कि कैसे एक parent अपने daughter individual के जैसा होता है या कैसे one offspring is similar to the parent one. और इसी curiosity का नाम था to study the pattern of transferring the character from parents to the offspring. So initially the complete genetics is based on the study of transferring the character from parents to the daughter individual or offspring. My dear child, I am again and again using the word daughter individual. Daughter individual का मतलब होता है genetics में the offsprings are called as daughter individual. Okay, यहाँ son नहीं होता है, यहाँ son और daughter नहीं होते हैं. All the offsprings are referred as daughter individual. Okay, so initially genetics का field किससे related था? That is going to deal only with the transfer of the characters, not with the variation. क्योंकि हमने अभी देखा था firstly वैटसन ने जो definition दी थी, genetics is the study of heredity and variation. Even though we are also going to learn the heredity and variation here, but first of all we are discussing from the beginning time period only. तो first of all ये देखने में आया था कि genetics का पूरा focus था to understand the pattern of transferring the character. But जैसे जैसे हम इस चीज़ को समझते चले गए, जैसे जैसे ये क्लियर होता गया कि किस तरीके से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, वैसे वैसे हमारे सामने एक नई समस्या उत्पन्न होती चली गई. वी आर गोइंग टू फेस और वी वर फेसिंग अ न्यू टाइप ऑफ चैलेंज अमंग अस. We have observed, the humans have observed, the scientists and researchers have observed that two offspring of the same parents are not exactly similar to each other. This was once again a kind of problem. This was once again a kind of curiosity. क्या आपने देखा है कि the two brother sisters of the same mother and father, two brother sister of the same parents, two offspring of the same parents are completely similar to each other. उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है. This is what it has been observed, कि even though the offsprings are twins, then too they are having the striking differences between that. Now a new way of thinking about the transfer of character is being studied. Now a new way of thinking about transferring the character has been explored. यार भैया पहले तो प्रॉब्लम थी कि हाउ द कैरेक्टर हैज़ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि कैरेक्टर तो जा ही रहा है, लेकिन जाने के बाद में वो एक जैसा क्यों नहीं है. वाई दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट वन. हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कि वेदर द इंडिविजुअल्स दोज हु आर टेकिंग बर्थ फ्रॉम द पेरेंट्स दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली कॉपी टू द पेरेंट्स वन. नहीं, जेनेटिक्स में इस चीज को भी डील किया गया. Not only transferring the character, but why the individuals, those who are taking birth from the parents, they are not exactly similar to the parent. This was also the field of genetics. Okay, moving on to the next point. So this led the concept of differences among the organisms. दो organisms एक दूसरे के बिल्कुल similar नहीं हो सकते हैं. तो पहले जेनेटिक्स किस फील्ड में काम कर रहा था? ओनली ऑन द फील्ड ऑफ ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर. जैसे जैसे हम समझते गए, नॉलेज बढ़ता गया, नई समस्या पैदा हुई. द आर्गनेज विच आर टेकिंग बर्थ फ्रॉम द पेरेंट्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स. They are having the quite or striking differences to their parents. And even though the twins, those who are taking birth at the same time, they are also having the differences. So this led the concept of differences among organisms. तो अब genetics दो अलग अलग discipline का नाम हो गया. Genetics is equal to heredity plus variation. What is genetics now? अब बैटसन की definition के according हमको काम करना है. Genetics is what? Heredity and वेरिएशन. हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स. सो इज इट क्लियर? अब अपने को देखना है कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ, सो दैट कि यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम व्हाइल लर्निंग द जेनेटिक्स. बिल्कुल जीरो से. आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि यू आर ब्लैंक, सो आई एम फीलिंग द एवरी टाइप ऑफ द कलर इन दैट ब्लैंक पेपर. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टर्म, दैट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी को नॉर्मली हम इनहेरिटेंस कहते हैं. इनहेरिट होना मीन्स शिफ्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. दिस इज व्हाट द फर्स्ट अप्रोच ऑफ द जेनेटिक्स. ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज
heredity. What is the heredity? The transmission of the character from one generation to the next generation is heredity, and character which are transferred are called as the genetic character. जिन characters को transfer किया जाता है वो कहलाएंगे genetic character, और इसी से word आया आपका genetics. Okay, so transmission पहला term क्या है? heredity. heredity या inheritance means what? Transferring of character from first generation or one generation to the next generation is called as heredity. और वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज, डिफरेंसेस between the two individuals of the same species is called as variation. What is variation? Though individual, those belongs to the same species but having the differences, that difference is variation. दो इंडिविजुअल के बीच में मिलने वाला डिफरेंस क्या कहलाएगा? आपका वेरिएशन कहलाएगा. अब ये वेरिएशन जिन टाइप की सेल्स में होता है उन सेल्स के बेसिस पे दो तरीके से समझा जा सकता है. वन इज कॉल्ड एज द सोमैटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स, and second one is the genetic variation or the germinal variation present in the germinal cells. So somatic variation पूरी तरीके से लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स में होता है, एंड दैट इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल चेंजेस. वॉट एवर द इन्वायरमेंटल चेंजेस आर गोइंग ऑन देयर, एज पर द इन्वायरमेंटल चेंजेस, उस इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से होने वाला रिस्पॉन्स आपका कहलाता है सोमैटिक वेरिएशन. ध्यान रखने की बात है, दिस सोमैटिक वेरिएशन आर नॉन इनहेरिटेबल, दीज आर एक्वायर्ड एंड टेम्परेरी. सो दिस इज द थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज. नॉन इनहेरिटेबल सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल, एक्वायर्ड एंड टेम्परेरी. नॉन इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है? द वेरिएशन विच इज not going to move on to the next generation, the character which is not going to move on to the next generation, that is what called as non inheritable. Acquired का मतलब क्या होगा? The character or the variation which acquired during the life of the organism based on the environmental influences or experience of the organism. And third one, temporary का मतलब not permanent, this is not going to fix in the species, instead this is going to टर्मिनेट विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये एक लाइफ तक तो रहेगा लेकिन अगली लाइफ में दिस विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो दिस इज व्हाट द नॉन इनहेरिटेबल, acquired and temporary, and that kind of the variation is present in the somatic cell which has been developed under the influence of the environment. Second type of variation, genetic variation. ये germ plasm में ओरिजिनेट होगा, परमानेंट होगा और इनहेरिटेबल होगा. जर्म प्लाज्म में ओरिजिनेट होना मतलब जो जेनेटिक सेल्स हैं जिनमें जर्म प्लाज्म होगा उनके अंदर या जर्म प्लाज्म में ओरिजिनेट होने वाला है. एंड दीज आर द जर्म प्लाज्म, और जर्म प्लाज्म इज द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्योंकि जर्म प्लाज्म मूव होता है नेक्स्ट जनरेशन में तो ये कैसा हो जाएगा? इनहेरिटेबल हो जाएगा. सो जेनेटिक वेरिएशन इज इनहेरिटेबल एज वेल एज परमानेंट. वाई परमानेंट? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट विद द जनरेशन, इंस्टेड इट इज गोइंग टू आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. अब ये भी दो तरीके का हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस. कंटिन्यूस वेरिएशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल वेरिएशन होते हैं. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ, बट द वेरिएशंस आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड. इतने छोटे वेरिएशन होते हैं कि उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है. सो दोज वेरिएशंस आर कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएशन. सो स्मॉल, indistinct and the fluctuating variations are called as continuous variation. Second one, discontinuous. Discontinuous is the large, बड़े वेरिएशन जिनको आसानी से पहचान लेंगे. आसानी से पहचान लेंगे मतलब कभी किसी जनरेशन में हमने देखा है द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली आर हैविंग द स्ट्रेट हेयर, बट सम ऑफ द इंडिविजुअल आर न्यू बॉर्न बेबी इज हैविंग द कर्ली हेयर. बड़ा वेरिएशन था, बड़ा कैरेक्टर था, ये पहचान में आ गया. सो दैट लार्ज डिस्टिंक्ट is called as discontinuous, or normally these large variations or discontinuous variations are referred as mutation. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे म्यूटेशन अपन, हम अभी केवल फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं, एक एक करके पॉइंट समझ रहे हैं. हम जानते हैं कि द बेसिक मैकेनिज्म और बेसिक वर्क और द एडवांस वर्क देयर इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स वाज डन बाय द मेंडल. मेंडल ने जेनेटिक्स को एक नई सोच दी थी. मेंडल वाज द पर्सन हु हैज़ गिवन द कंप्लीट अ न्यू थॉट, complete provocation to the genetics, but before that also we can't say the genetics was blind. हम ये नहीं कह सकते कि उसके पहले लोगों ने सोचना शुरू नहीं किया था. तो some of the important workers are there, some of the important works has been done in the field of studying the transferring of character, how the
parents and the daughter individual, how the parents and offspring are similar to each other. That is what the work has been done before the Mendel also, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो बहुत पहले से चल रही थी कि वाई वी आर सिमिलर टू द पेरेंट्स वन. सो उसको पता लगाने के लिए बहुत सारे काम हुए उस फील्ड में, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए. बट आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट आउट फ्यू इन्वेंशंस देयर बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन. सबसे पहला वर्क जो इंपॉर्टेंट है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय पाइथागोरस. रिमेंबर पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन. सो इन 500 BC he presented a concept. That concept is called as vapor theory. पाइथागोरस ने 500 BC में वेपर थ्योरी प्रेजेंट की थी. According to the vapor theory, the vapor from the male body during the sexual act is responsible for the formation of similar RNAs in the फीमेल बॉडी. इनका ये मानना था कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, द मेल्स बॉडी इज गोइंग टू रिलीज आउट सम ऑफ द वेपर एंड दिस वेपर इज ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर टू द फीमेल बॉडी एंड दैट कैरेक्टर्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द एम्ब्रियो वट एवर इज डेवलपिंग इन टू द फीमेल वॉर्म. दिस वॉज द वेपर थ्योरी. एरिस्टोटल, ग्रेट नेम इज देयर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको. हर फील्ड में बायोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट में इनका अप्रोच रहा है. एरिस्टोटल 384 से 322 BC इज देयर. सो इनका ये कहना था द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बिकॉज अल्टीमेटली एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज समवट और सम हाउ लिंक्ड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कार्पस ल्यूटियम आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से अगर कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड हो जाती है एंड कंटिन्यूअस हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो फॉर्मेशन. सो इनका मानना था फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, वाइल मेल्स सीमेन प्रोवाइड वाइटलिटी टू द एम्ब्रियो आर द न्यूबॉर्न. उसको जीवन देने का काम मेल का सीमेन करता है. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण होता है, बट द लाइफ टू द न्यूबॉर्न इनसाइड द फीमेल वॉर्म हैज़ टू बी गिवन बाय द ह्यूमन मेल्स सीमेन. मेल्स के सीमेन से ही होगा. इतना खास एविडेंस अवेलेबल नहीं था इन थ्योरीज के लिए, तो ये थ्योरीज भी केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गए. इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ. मूविंग ऑन टू द थ्योरीज दैट इज़ लैमार्क. लैमार्क की थ्योरी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन द टॉपिक इवोल्यूशन. तो लैमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का प्रिंसिपल प्रेजेंट किया था. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बेसिकली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द सोमैटिक वेरिएशन. ऑल द RNAs हैज़ टू डेवलप द वेरिएशन अमॉन्ग दैम ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपीरियंसेस. और इनका ये मानना था ऑल दोज वेरिएशंस आर बीइंग मूविंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. बट नाउअडेज दिस इज कंप्लीटली प्रूव्ड दैट सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेबल आर नॉन इनहेरिटेबल. डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने भी अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी प्रेजेंट की. और जब डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस आने लगे कि ही वॉज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कैसे वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा था, तो फिर बाद में उन्होंने एक सपोर्टिव थ्योरी प्रेजेंट की थी टू एक्सप्लेन हाउ द कैरेक्टर्स आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस. उनका ये मानना था ईच एंड एवरी RNAs आर हैविंग सम ऑफ द स्पेसिफिक फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज पैनजीन्स आर द जिम्यूल्स. उनका मानना था हर एक RNAs के पास में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज पैनजीन्स आर द जिम्यूल एंड दिस जिम्यूल्स आर फ्लोइंग इन द ब्लड ऑफ द RNAs. तो जब ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का, तो इन जिम्यूल्स के फॉर्म में, इन पैनजीन्स के फॉर्म में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. दिस इज़ व्हाट द बिलीफ ऑफ डार्विन. इसके बाद अब समय आता है द ग्रेट जॉन मेंडल, द ग्रेगर जॉन मेंडल. द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल इज 1822-1884. Usually the life history is not involved there in the NCERT curriculum, not involved in the NEET curriculum. फिर भी कुछ ऐसे events हैं that you must remember for the NEET examination. So one by one I am just going to list down those events and you must take care of that. इतने तो आपको करना ही करना है. John Mendel has been taken birth. Her birth of the John Mendel was there in 22nd July 1822 in the country that is Austria. Anciently in the old time that was known as Czechoslovakia. आजकल इसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है. इनकी जो पूरी प्राइमरी एजुकेशन थी, दैट एजुकेशन was completed there in the Brunn only.
फिर उसके बाद में इनको प्रीस्ट के फॉर्म में अपॉइंट किया गया ब्रन में। ये ब्रन वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गिविंग दिस वर्ड। प्रीस्ट के फॉर्म में अपॉइंट किया गया इन द ब्रन। ब्रन इज आल्सो अ टाउन ऑफ द ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया, and here only, since he was appointed as the priest, here only he has been awarded with the title Gregor, और यहाँ से वो ग्रेगर जॉन मेंडल हुए। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, I'm not discussing the life history of Mendel, only I'm just giving the few points, those are important for the competitive examination। तो पहला बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में, पूछा जाता है। दूसरा, ब्रन शहर का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किए थे। दैट इज़ आल्सो देयर इन द ऑस्ट्रिया। ओल्ड टाइम में जब ऑस्ट्रिया था तो ओल्ड टाइम में दैट वाज नोन एज चेकोस्लोवाकिया। 1854 में यहीं ब्रन में इन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। 1854 ही हैज़ स्टार्टेड हिज वर्ल्ड फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखें, हर एक वर्ड जो यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार पूछा जाता है, हर तरीके की एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मस्ट बी रेडी फॉर दैट। He has performed the hybridization experiment on the Pisum sativum, the garden pea plant। उन्होंने 1854 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, एंड ही हैज़ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट। एंड 1866, ये ईयर याद रखेंगे, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैज़ बीन गिवन देयर इन 1866। 1866 में उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, अपने प्रिंसिपल को, अपने ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश किया इन अ स्मॉल मैगजीन दैट इज़ ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रन। उसी सोसाइटी का या उसी चर्च की एक नेचुरल एनुअल प्रेसिडिंग होती थी, उसमें एक बहुत छोटी सी मैगजीन में प्रेजेंट किया था उन्होंने। सो 1866 ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन एनुअल प्रेसिडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। ये याद रखना है आपको, एनुअल प्रेसिडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रन इन 1866। मतलब मेंडल का प्रिंसिपल 1866 में प्रेजेंट हो चुका था, आ चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज द फंक्शन, द वर्क ऑफ मेंडल was not recognized till his life was there। पूरे जीवन भर वो उसको मान्यता दिलाने में लगे रहे, but he was unfortunately not able to get it recognized। उसके कई सारे कारण थे, बिकॉज दो बड़े कारण जो मेरे समझ से होते हैं। द फर्स्ट वर्क इज दैट कि व्हेन द मेंडल वर्क वाज पब्लिश्ड, दैट वाज द टाइम ऑफ चार्ल्स डार्विन, एंड मैनी ऑफ द साइंटिस्ट, मैनी ऑफ द रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड वर मेकिंग द डिस्कशन ओनली ऑन द डार्विन। तो डार्विन के काम के पीछे मेंडल का काम दब गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डार्विन के काम के पीछे मेंडल का वर्क दब गया, और इसी अननोन कंडीशन में अपने काम को छोड़ के इन 1884 ही गॉट डाइड। ओके, सेकेंड थिंग, उनका मैथमेटिशियन होना। उस समय तक ये माना जाता था कि द मैथमेटिक्स एंड द बायोलॉजी इज टू डिफरेंट स्ट्रीम, एंड हाउ अ मैथमेटिशियन कैन प्रोवाइड द clarification or explanation of a biological concept like inheritance or heredity। So this was two most important unfortunate things happened with the Mendel, और Mendel वहाँ पे successful नहीं हुए to present his own concept या उसको accept करा सकें to the world। Okay, लेकिन बाद में व्हेन द पोस्ट मेंडेलियन वर्कर्स वर देयर, अपन इसको और आगे देखेंगे, वॉन सेरमाक, ह्यूगो डेवरेज, कार्ल कोरेंस, दीज वर द थ्री साइंटिस्ट हु हैज़ वर्क ऑन द मेंडेलियन प्रिंसिपल इन अर्ली 90s। वहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी दी गई, तो उसमें सब में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए। देन ओनली द मेंडल वर्क गॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द जेनेटिक्स। तो मैं यहाँ पे पूरा उनकी लाइफ हिस्ट्री आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई एम जस्ट गिविंग सम पॉइंट्स, सो यू मस्ट रिमेंबर। सबसे खास पॉइंट है 1866 Pisum sativum। 1866 में he has published his Mendelian principle in a small magazine of the church where he was working। That title is that Annual Proceedings of the Natural History Society of the Brun। Okay, अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ द 2 marks क्वेश्चन। अगर आप CBSE एग्जाम में बैठ रहे हैं, 3 mark क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इफ़ यू आर अपियरिंग इन द नीट एग्जामिनेशन, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो रीजन्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि मेंडल ने वाई ही हैज़ चूजन द पी प्लांट्स ओनली, वाई नॉट ही हैज़ चूजन द अदर प्लांट। तो उसके लिए कुछ रीजन्स दिए गए, कुछ कॉन्सेप्ट थे।
easily grown in the garden. Pea plant is a kind of plant that can be easily grown anywhere. बड़े आसानी से ग्रो किया जा सकता था. तो जेनेटिक्स की स्टडी के लिए द रिसर्चर हैज़ टू फाइंड आउट सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज विच कैन बी इजीली अवेलेबल. हम अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज को ढूंढने जाएंगे जिसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, जिसको आसानी से ग्रो ही नहीं कराया जा सकता, तो दिस विल बी अ डिफिकल्ट टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. सो दैट इज वाई मेंडल हैज चूजन द पी प्लांट बिकॉज इट कैन बी इजिली ग्रोन इवन इन द गार्डन ऑफ द चर्च. सेकेंड वन, द पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कैरेक्टर था पी प्लांट का, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुए. पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट और एक साल में इसकी 2 जनरेशन देखी जा सकती थी. अब सपोज करें इफ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट और इफ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक a research material which is a biennial plant or the perennial plant. Suppose perennial plant is there. So a perennial plant may have the life span up to 5 to 10 years, 50 years, 100 years. सो अगर आपकी उम्र ही 50 साल की है, 60 साल की, 100 साल की और आपने एक ऐसा प्लांट चूज कर लिया जिसकी उम्र है 20 साल की और वो फ्लावरिंग शुरू करता है 5 साल में, तो आप कितनी जनरेशन उसकी ऑब्जर्व करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट योर फाइंडिंग्स, हाउ कैन यू फाइंड आउट योर रिजल्ट्स? सो दिस इज व्हाट उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लांट चुना दैट इज हर्बेसियस एंड द एनुअल प्लांट एंड मैनी ऑफ द जनरेशन कैन बी ग्रोन इन अ ईयर. ओके, एंड रिजल्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ट्वाइस इन द ईयर. थर्ड वन, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और इन्हीं सीड्स का हाइब्रिडाइजेशन करा के नए प्लांट्स का जनरेशन किया जा सकता था. प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर हमको जेनेटिक्स की स्टडी करनी है, इफ वी विश टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स शुड बी लाइक दैट कि दे कैन बी इजिली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द एक्सटर्नल व्यूज. सभी को देख के पहचान में आने जैसे कैरेक्टर होना चाहिए. ह्यूमंस में हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आसानी से पहचान नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें कैरेक्टर्स को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता. बट ही हैज़ चूजन द कैरेक्टर्स विच वर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. अरे सीड का शेप था, वन सीड इज रिंकल्ड एंड वन इज इन्फ्लेटेड. आसानी से एनीवन कैन बी आइडेंटिफाइड. हमने देखा कि सीड पॉड का कलर था, दैट पॉड कलर समवेयर इट इज येलो, समवेयर इट इज ग्रीन. आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था. तो प्लांट इज आइदर टॉल और ड्वार्फ, इजीली कैन बी आइडेंटिफाइड. फ्लावर्स सोज द बर्ड पॉलिनेशन. बर्ड पॉलिनेशन होने के कारण दे कैन परफॉर्म द होमोजाइगोसिटी, प्योर ब्रीडिंग प्लांट हो सकते थे. और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि दे आर पैपिलिनोशियस फ्लावर, इनमें आसानी से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स बाय विच आर फॉर विच द मेंडल हैज सिलेक्टेड द पी प्लांट. रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट्स. रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल, बहुत सारे वर्कर्स ने काम किया बट ऑल द वर्कर्स वर नॉट एबल टू गेट सक्सेस देयर. So what is the reasons behind the success of Mendel? So उन्होंने क्या किया, he studied the inheritance pattern of one character at one time. जब वो उसमें सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने फिर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की. उन्होंने जल्दबाजी नहीं की. जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, पहली बार में एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा और उसके बाद में व्हेन ही वाज कंफर्म्ड अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, देन ओनली ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. सेकेंड वन, द सिलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्ट अपीयरेंस. आसानी से पहचाने जाने वाले कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया उन्होंने. उनका नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वाज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रेशियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज. कितने प्लांट नए डेवलप हुए, कितने कैरेक्टर के हुए, हाउ मेनी प्लांट्स वर ऑफ द टॉल हाइटेड, हाउ मेनी प्लांट्स वर ऑफ द ड्वार्फ हाइटेड, कितने वायलेट कलर के फ्लावर थे, कितने वाइट कलर के फ्लावर थे. कैरेक्टर्स द चूजन बाय मेंडल वर, अपन इसमें कहें मेंडल वॉज समवॉट लकी आल्सो कि मेंडल ने जितने कैरेक्टर चूज़ किए उसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो क्वालिटेटिव हो. दैट कैरेक्टर्स आर ऑल आर द कैरेक्टर्स वर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स. जितने भी कैरेक्टर चूज़ किए मेंडल ने, सारे के सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे. ईच ऑफ द कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल फैक्टर आर सिंगल जीन. हर कैरेक्टर जो मेंडल ने चूज़ किया वो सारे के सारे सिंगल फैक्टर से कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर थे.
एक और ख़ास बात थी इसमें कि किस्मत से मेंडल ने जिन फैक्टर्स का सिलेक्शन किया, जिन कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया, ऑल दोज कैरेक्टर्स वर इंडिपेंडेंट, दे वर नॉट लिंक्ड कैरेक्टर्स. सो इन सारे फैक्टर्स के कारण, इन सारे रीजंस के कारण मेंडल हैज़ बीन फाउंड हिमसेल्फ सक्सेसफुल फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड ही हैज़ गिवन द वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ hybridization or wonderful concept of the genetics. He laid the foundation of genetics. So for today this is enough. In next lecture I will just continue the Mendel's hybridization experiment, how the Mendel has worked. So till the time, thank you.